Assalamu alaikum. Welcome in the class of environmental chemistry, and today we will discuss its third lecture, which is environment and its component. This presentation is submitted by Muhammad Jahazib. So again, a brief introduction of the environment, although we have discussed environment in detail in lecture number 1 and 2. But there are some new things. For example, the term environment has been derived from a French word environia, which means to surround. Environment का word जो है environia से लिया गया है, which is a French word. French में तो खैर इसका pronunciation कुछ और है, but I have just pronounced its English version, environia. तो जो environment है वो environia से लिया गया है, जिसका मतलब है to surround. This refers to both abiotic and biotic environment. We will see shortly what is the meaning of abiotic and biotic. The word environment means surrounding in which organisms live. यानी environment का अगर हम literal meaning की बात करें तो इसका मतलब है surrounding, यानी हमारा माहौल in which different organisms they use to live. Environment and organisms are two dynamic components of nature. ठीक है, तो environment and organism ये दो डायनामिक कंपोनेंट्स हैं, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो कि मूवेबल हैं. Environment regulates the life of the organisms, including human beings. Human beings interact with the environment more vigorously than other living organisms. इंसान एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा विगसली एक्ट करता है, रिएक्ट करता है एज कम्पेयर्ड विद अदर लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. Environment is the sum of conditions that surrounds us at a given point of time and space. It is composed of the interacting system of physical, biological, and cultural elements. Now they have added the cultural elements as well. तो एनवायरनमेंट जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, अब कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह का नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स हैं और एनिमल्स भी वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें ज़्यादातर लोग फॉर एग्जांपल वेजिटेरियंस हैं, तो वो अपने माहौल को ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे यूज टू लिव ऑन द वेजिटेबल्स, सो दे वुड लाइक टू ग्रो वेजिटेबल्स. तो लेकिन अगर वहाँ पर कुछ और लोग आ जाएं जो कि वहाँ पर इंडस्ट्री को बिल्ड करना चाहें, तो इस तरह से इंडस्ट्री या कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहें. फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई थिंक मुल्तान में ही वहाँ पर डीएचए ने एक हाउसिंग अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी कॉलोनी काटी है, और वहाँ पर खबरों में आ रहा था कि 70,000 आम के जो दरख्त हैं वो काट दिए गए हैं. ठीक है, तो दिस इज़ कल्चरल एस्पेक्ट. तो जो मैन की ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वही एक्चुअली एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने का बायस बनती हैं. Environment can be broadly defined as one surrounding including all of the living and non-living factors that act on organism, population, or ecological community. So we have discussed a lot about it. To be more specific, we can say that it is the physical and biological habitat that surround us, which can be felt by our physical faculties. Right. अब अगर हमने इसको मोर स्पेसिफिकली डिफाइन करना है तो वो क्या हो सकता है. ये कोई भी फिजिकल या बायोलॉजिकल हैबिटेट है दैट सराउंड्स अस, जिसने हमें सराउंड किया हुआ है. ठीक है, अब वो फिजिकल हैबिटेट है या बायोलॉजिकल हैबिटेट है. राइट. अब फिजिकल से मुराद जैसे हम कह सकते हैं एनिमल्स, जिसमें इंसान भी आता है,
And biological habitat mean plants, राइट, बायोलॉजी में जाहिर है जिसने हमें सराउंड किया हुआ है, विच कैन बी फेल्ट बाय आवर फिजिकल फैकल्टीज, जिसको हम फिजिकली फील कर सकें, यानी उसको देख सकें, उसको सुन सकें, टच कर सकें, स्मेल कर सकें या उसको टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारा हमारी फिजिकल फैकल्टीज एंड फिजिकल और बायोलॉजिकल हैबिटेट का आपस में इंटरेक्शन है। दिस इज एनवायरनमेंट। So there is another definition of the environment. The natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally. The term is most often applied to the earth or some parts of the earth. ठीक है, अब एक तो बेसिकली ये है कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम प्लानट अर्थ की बात करेंगे, उसकी एनवायरनमेंट की बात करेंगे। और दूसरा क्या है कि इसमें इंटरेक्शन होगा बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स, that is the interaction between biotic and abiotic components। जो abiotic components हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स और जो बायोटिक components हैं वो लिविंग। सो एनवायरनमेंट में हम इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे बिटवीन बायोटिक and abiotic components। This environment encompasses the interaction of all living species, climate, weather and natural resources that affect human survival। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलरली उन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इस एग्जांपल के अंदर ऑफ द एनवायरनमेंट, दीज आर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। और इसी तरह ऑल लिविंग स्पीशीज, दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, क्लाइमेट है, वेदर है, नेचुरल रिसोर्सेज है। सो इन द एनवायरनमेंट we will study the interaction between human and their climate, weather and natural resources। Components of environment. So there are three basic components of the environment: abiotic, biotic and energy components। Abiotic components, as I have already discussed, non-living factors that influence the population size and environment, these are called abiotic components। ठीक है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन साइज को इम्पैक्ट करेंगे, these are called the abiotic components। Now the examples, now we have the more examples of abiotic components: temperature, light intensity, moisture, water levels, air currents, carbon dioxide levels and pH, all these are included in the abiotic components। Thus abiotic components include physical conditions and non-living resources that affect living organisms in terms of growth, maintenance and reproduction। So abiotic components, these include the non-living conditions, that is uh, for example light intensity, water levels, these are the abiotic components which can have an impact on the growth, maintenance and reproduction of abiotic component, for example human beings। Now we have the biotic components: any living component that affects the population of another organism or its environment, this is called biotic component। तो कोई भी environment का component जो living हो, ठीक है, और वो इफेक्ट करे पॉपुलेशन ऑफ एनदर, दूसरी लिविंग बीइंग की पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करे, या फिर वो एबायोटिक या फिर वो अपनी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करे। अब एनवायरनमेंट के अंदर तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स which can have an impact on its environment। इसकी एग्जांपल्स में एनिमल्स दैट कंज्यूम द ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग फूड दैट ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम। ठीक है, अब देखें इसमें एनिमल्स इसकी एग्जांपल में आ जाएगा जो कि अपने साथ वाली फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, सेम ऑर्गेनिजम्स को, या फिर जो हमारे पास ये वाला बायोटिक कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल एनिमल, और इसी तरह
लिविंग फूड जो है दैट ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम, ठीक है। अब लिविंग फूड जो है वो भी बायोटिक कंपोनेंट में आ सकती है, ज़ाहिर है प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा इंक्लूड ह्यूमन इन्फ्लुएंस, पैथोजेंस, डिजीज आउटब्रेक, ऑल दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स बिकॉज दीज आर लिविंग, ठीक है। इसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह को बोलते हैं। इसके अलावा डिजीज आउटब्रेक, ज़ाहिर है उसमें भी स्मॉल बैक्टीरिया वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं, विच विल also considered under biotic components because these are living things. Each biotic factor needs energy to do work and food for proper growth. So this is the basic point, right? हर biotic जो component है, because this is living, so it needs food and food for energy and to grow. All living organisms around us, example given plants, animals and microorganisms, this is also called living environment, इसको living environment बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये biotic components के अंदर आएंगे। Of course all species are influenced by biotic factors in one way or another. For example, if the number of predators will increase, the whole food web will be affected. Predators कहते हैं शिकारी को, ठीक है। तो अगर प्रीडेटर्स जो है इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर है उससे होल फूड वेब विल बी इफेक्टेड, यानी अगर फूड प्रोवाइड करने वाले एलिमेंट से प्रीडेटर्स यानी फूड को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे तो जाहिर है सारा फूड वेब डिस्टर्ब होगा इससे। सिमिलरली व्हेन ऑर्गेनिजम्स हैव मोर फूड टू ईट दे विल ग्रो क्विकर एंड विल बी मोर लाइकली टू रिप्रोड्यूस, राइट। सो ज़ाहिर है अगर फूड ज़्यादा होगी तो उससे आबादी में ज़्यादा इजाफा होगा, सो द पॉपुलेशन साइज विल ऑब्वियसली इंक्रीज। Pathogens and disease outbreaks, however, are most likely to cause a reduction in population size. अब पैथोजेंस एंड डिजीज आउटब्रेक, जैसा कि फिर मुझे बार बार वही कोरोना का ही याद आता है। तो अगर बैक्टीरिया वायरसेस, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरसेस, इसके अलावा किसी दूसरी डिजीज का आउटब्रेक हो जाए तो इससे पॉपुलेशन साइज रिड्यूस होगा। लेकिन वैसे ये फैक्टर जो है ना वो माजी में ज़्यादा था, जैसे मलेरिया वगैरह फैल जाता था तो millions of human beings they were killed by these disease outbreaks in the past, but this is not now the condition because now we have solutions to these diseases, इसलिए पॉपुलेशन साइज जो है उसमें इंक्रीज ज़्यादा है। Humans make the most sudden changes in an environment. These changes are most likely to cause a disease decrease in the population of any species due to sudden changes as well as appearance of pollutants. तो एक्चुअली इंसान ही ज़ाहिर है ज़्यादा ज़मीन पे एक्टिव है और उसकी वजह से ही ज़्यादा सडन चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो अभी देखें हमारे पास अगर किसी जगह पे ज़्यादा फॉर एग्जांपल जंगलात हैं और इंसान उन जंगलात को काटना शुरू कर दे तो डेफिनेटली इसमें एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगी। और ना सिर्फ ये कि फिर जंगली हयात का खात्मा होगा बल्कि ये सैलाब वगैरह को भी दावत देगा। सो दिस वाज अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड abiotic components. Now we have the third component which is energy components. The energy components are involved in both the biotic and abiotic components and the interaction between them. अच्छा जी, तो एनर्जी कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोटिक में भी इन्वॉल्व होते हैं, एबायोटिक में भी, और उनका इंटरेक्शन। The total environment may be considered as the composition of natural and anthropogenic environment. अच्छा जी, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब जो सारी इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया है नेचर ने, ठीक है, या तो इसको नेचर ने प्रोड्यूस किया है या आर्थोपोजेनिक एनवायरनमेंट या मैन मेड है, राइट। अब नेचुरल की एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉरेस्ट्स, बिकॉज दे आर ग्रोन नेचरली। और आर्थोपोजेनिक एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट, इसकी एग्जांपल्स बड़े बड़े ये प्लाजाज हैं, ठीक है, कॉलोनीज हैं विच आर मेड बाय मैन, ठीक है, शिप्स हैं। सो वो एक अलहदा वहाँ पे एनवायरनमेंट होती है। So the environment which is produced by man, this is anthropogenic environment.
while natural environment, this is produced by nature. The natural environment is self-regulating and is collected by homeostatic mechanism. सो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये तो सेल्फ रेगुलेटिंग होती है एंड इज कोलेक्टेड बाय होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, दिस इज होम्योस्टैटिक। अच्छा, अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली एक सिस्टम अपना बनाया हुआ है और उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टरबेंस उसी वक्त पैदा होती है जब हम इंसान उसे डिस्टर्ब करते हैं। अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर हार्मफुल मादे जो हैं वो पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ही मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं और वो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। दिस इज homeostatic mechanism in which all the things they are regulated by themselves, खुद ही वो रेगुलेट करती हैं और ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है। Thus, any change in any component of natural environment is counterbalanced by a reciprocal change in some other component। ठीक है, अब इस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती भी है तो एक कंपोनेंट में, तो दूसरा कंपोनेंट जो है उस चेंज को एब्जॉर्ब करने के काबिल होता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है, इसको अब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जंगल है एक और उसमें वेजिटेशन अगर ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगी और उस वेजिटेशन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा। So this is the natural homeostatic mechanism that if there is a change in any component of the environment, then this change will be counterbalanced by a reciprocal change in some other component. So increase in food mean increase in reproduction of the species. The factors which we have just discussed, they have either cause in increase or decrease in population size depending on the organism. For example, rainfall may encourage the growth of new plants, but too much of it may cause flooding, which may have drastic influence। और उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज हो सकता है। So this is the influence of biotic and abiotic components against each other, and how they can impact each other we have discussed very well in this lecture, and how they impact each other, this we have studied in the energy components. So this was all about. Thank you very much, and we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.